قرآن عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب کا 32واں باب اور اس کی 22ویں تا 24ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اترا اور ان کو لے کر ندی پار کر آیا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام کا آج مطالعہ کرنے والے ہیں وہ مضمون ہے جیکب واز لیفٹ alone۔ یعقوب اکیلا رہ گیا۔ اس مضمون کو میں نے 32ویں باب کی 24ویں آیت کے پہلے حصے سے لیا ہے۔ یعقوب جو ہے وہ اکیلا رہ گیا۔ پتہ نہیں اس تکلیف میں سے گزرتے ہوئے آپ نے اسے کس طرح سے لیا ہے، وہ کون کون سے لیسنز ہیں جو آپ نے اس سے حاصل کیے ہیں، لیکن اکیلا ہونا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اور پھر ایک ایسا شخص جو بھرا بھرایا ہو، ایک ایسا خاندان جس میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ یعقوب اپنی دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر اپنے بھائی سے چھپتا پھر رہا ہے، کیونکہ اس کا بھائی جو ہے، اگر آپ پچھلے چیپٹر میں جائیں گے تو وہ 400 لوگوں کو لے کر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ ماضی یاد رکھنا چاہیے اور ماضی کی باتیں بھولنی بھی نہیں چاہیے۔ یعقوب کو یاد ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اسے یاد ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے باپ کو بھی اور اس نے اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دیا، اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ کئی 100 میل کا پیدل سفر کرنے کے بعد اپنے ماموں لابن کے پاس چلا گیا، جس کے نام سے آج دنیا کے نقشے پر لبنان نام کی ایک کنٹری جو ہے وہ موجود ہے۔ کئی 100 میل، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جب میں دریا کے اس پار آیا تھا تو میرے ہاتھ میں محض ایک لاٹھی تھی، لیکن اب جب میں واپس جا رہا ہوں تو میرے پاس جانوروں کے 2 بڑے ہال ہیں، بیٹے اور ایک بیٹی بھی ہے، میری 2 بیویاں بھی ہیں اور میرے ساتھ لونڈیاں بھی ہیں۔ چونکہ بھائی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، 400 لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے یعقوب جو ہے وہ ہمیں خوف میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کئی بار بائبل کا خدا ایسے حالات بناتا ہے کہ آپ کو شدت کے ساتھ یہ احساس بخش دیا جائے کہ آپ کسی بھی طور پر اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یعقوب وہاں اکیلا رہ گیا، اور میں غور کر رہا تھا اس کشتی پر۔ ایک تو پہلے ہی وہ اپنے بھائی سے ڈرا ہوا ہے، اس نے ایک ٹیکنیک استعمال کی ہے کہ اگر میرا بھائی اٹیک کرتا ہے، کسی بھی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو میں انہیں 2 غول
में तकसीम कर दूं ताकि टोटली नुकसान ना हो। ये इंसानी टेक्निक है जो याकूब ने इस्तेमाल की है, लेकिन लौंडियों को, बीवियों को, बेटों को पार भेजने के बाद वो अकेला रह गया है। और ऐसे में फिर कुश्ती शुरू होती है और इस कुश्ती को सारी रात जारी रखना पड़ता है और इस कुश्ती में उसकी नस चढ़ जाती है और वो चलने से भी मजबूर हो जाता है। इसको कहते हैं कि सर मुंडाते ही औले पड़े। एक तो पहले ही भाई का खौफ है, दूसरा अकेला रह गया है, तीसरा एक अनजान शख्स से वो कुश्ती कर रहा है, उस कुश्ती में नस चढ़ जाती है और वो चलने से भी परेशान हो जाता है। लेकिन बाइबल का खुदा उसे दिखाना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूं। मुमकिन है कि याकूब ये समझ रहा है कि मेरी तो नस चढ़ गई है और मैं अब अपने भाई का कैसे मुकाबला कर सकता हूं, मैं तो पहले भी नहीं कर सकता था, अब कैसे करूंगा। लेकिन याकूब नहीं जानता कि उसने असल में इस कुश्ती में मैदान मार लिया है। एक बहुत बड़ी बात उसके लिए कही गई, एक बहुत बड़ी बात उसके लिए कही गई। कहा गया कि तूने खुदा और इंसान से मुकाबला किया और तू गालिब आया। मैं और आप खुदा से कैसे जीत सकते हैं? लेकिन मैं गौर कर रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपने छोटे बच्चों के साथ कुश्ती करते हैं, प्यार में कुश्ती। और कुश्ती करते 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 जब हम देखते हैं कि हमारा छोटा बेटा जो है या पोता जो है वो थोड़ा सा हप गया है, उसकी सांस में सांस नहीं रही, अब वो थक गया है, तो हम उसे नीचे से उठाकर ऊपर ले आते हैं, खुद नीचे चले जाते हैं और उस बच्चे की फतह का ऐलान कर देते हैं। याकूब के साथ खुदा ने प्यार में यहां यही किया है। तूने इंसान से मुकाबला किया, तूने इंसान और खुदा पर फतह, कामयाबी और कामरानी को हासिल किया। लेकिन मैं जोर देकर यह कह रहा हूं कि कामयाबी और कामरानी का राज इसी में है कि आप अकेले हों, क्वारंटीन हों। और मैं आपको डॉक्टर लूका की इंजील के 4 बाब में ले जाना चाहता हूं, जहां खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो 40 डेज के लिए क्वारंटीन के अमल से गुजरता हुआ हमें दिखाई देता है। 40 डेज तक। लेकिन फर्क क्या है? हम जब 14 डेज या अब गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक 10 डेज क्वारंटीन के अमल से गुजरते हैं तो उसके बाद हम हप जाते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं और यूं रहता है कि जैसे जिस्म में जान नहीं रही। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है, जिस्मानी तौर पर इतनी कमजोरी क्यों? और इसका जवाब मुझे इन्हीं 3 हफ्तों के दौरान इस तरह से मिला कि शायद उस तौर पर हम खुदा के साथ इस दौरान प्लग ही नहीं होते जिस तौर पर हमें होना चाहिए था। बदन के तौर पर कमजोर हुए, यकीनन गतसमनी में खुदा यीशु मसीह के हवाले से लिखा है और ये बिल्कुल इसी तरह से इस बात को तहरीर किया गया है कि जिस्म कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। क्वारंटीन हो, बदन के तौर पर अगर कमजोर होते भी हैं तो हो, लेकिन अच्छा ये है कि हम रूह के तौर पर तगड़े हो जाएं, रूह के तौर पर तगड़े हो जाएं। कई बार बाइबल का खुदा ये चाहता है कि उसके खादिम भी इस क्वारंटीन के अमल से गुजरे ताकि उन्हें पता चल जाए, उन्हें मालूम पड़ जाए
कि अकेले होने की तकलीफ क्या होती है। कई बार बाइबल का खुदा इस किस्म के हालात बनाता है कि वो अपने खादिमों को क्वारंटीन होने देता है। लेकिन बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, चौथे बाब की 12वीं आयत से यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे दूर हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा। लफ्जों पर गौर करें, क्वारंटीन के बाद खुदावंद यीशु मसीह कुव्वत से भरा हुआ हमें दिखाई देता है। और मैं समझता हूं कि हम जो क्वारंटीन के अमल से गुजर कर आए हैं, बदन के तौर पर आप कहीं ना कहीं कोई कमी और कमजोरी तो महसूस करते हैं और शायद कर भी रहे हैं, लेकिन रूह के तौर पर अब आपको कुव्वत से भरे होना चाहिए। रूह के तौर पर आपको कुव्वत से भरे होना चाहिए। आप अंदर से तगड़े हो जाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप अंदर से तगड़े होंगे तो फिर बाहर की कमजोरी जो है वो किसी भी तौर पर मुझ पर और आप पर गालिब नहीं आएगी। मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया कि जिस्म में कमजोरी है, इस पोषण में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कब तक? बाइबल का खुदा तो सब कुछ कर सकता है। वो मुमकिनात का खुदा है, वो मौजज़ात का खुदा है, और कई बार वो इस किस्म के हालात बनने देता है। मुझे बहुत से हवाले इन दिनों में याद आते रहे। मैं खास तौर पर उस नौजवान पर गौर करता रहा जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर थूका, मट्टी सानी और उसकी आंख बना दी। कहा तुझे कुछ दिखाई देता है? फर्स्ट अटेम्प्ट में दिखाई नहीं दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद फिर जब दुआ की गई तो उसे बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगा। कई बार बाइबल का खुदा इस किस्म की छोटी छोटी सी कमजोरियां जिस्म में रहने देता है, क्योंकि वो चाहता है कि इस बदन से हम अपनी तवज्जो को अब हटाकर जरा रूह के तौर पर अपनी तवज्जो लगाएं, ताकि अंदर से हम तगड़े हो जाएं। एक बात याद रखिएगा, ये जो कुश्ती करना है ना, कुश्ती आप इस बदन के जरिए से नहीं करते हुए। मैं मानता हूं कि इसमें बदन का अपना एक रोल है, लेकिन याद रखिएगा किसी भी कुश्ती में जीत जो है वो अंदर से है, यहां से। जब आप यहां से खड़े हो जाते हैं, आप दाऊद की तरह छोटे बच्चे बनकर जाति जूलियत के सामने खड़े हो जाते हैं और ललकार कर ये कहते हैं कि जंग तो ये हवा की है, तगड़ा हो जा, तो आप जानते हैं कि फिर इब्लीस को शिकस्त खानी पड़ती। तो कई बार शायद ये छोटी मोटी सी कमी, कमजोरी, तकलीफ, रुखसाना, बेइज्जत ये रह जाती है, और ये इसलिए है ताकि हमें इस बात का एहसास रहे कि हमें मुसलसल खुदा के कव्वी हाथ के नीचे रहना है। हमें मुसलसल खुदा के कव्वी हाथ के नीचे रहना है। दो बातें कहकर खत्म करूंगा। अगर मैं और आप बाइबल के खुदा से बरकत को लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिन जो हैं, खुद इनकारी के दिन मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बन जाएं, तो फिर बच्चों मुझे और आपको दो काम करने होंगे। पहला काम, खुदावंद के साथ गहरे में जाना होगा, और ये गहरे में जाना, फिर से कहूंगा, तकलीफ देह होता है। इसे हल्का ना लें। ये गहरे में जाना तकलीफ देह होता है। जितनी ज्यादा गहराई उतनी ज्यादा तकलीफ, लेकिन इसके ऑपोजिट, जितनी ज्यादा गहराई उतनी ज्यादा बरकत। और दूसरी बात, कुश्ती को जारी रखना पड़ता है, और जब हम कुश्ती को जारी रखते हैं
तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, फिर आप कामयाब होते हैं। मुमकिन है कि अभी आपका सांस जो है वो ठीक नहीं है, सांस के साथ सांस बराबर नहीं है, आप हपे हुए हैं, थके हुए हैं, लेकिन परवाह ना करें, जीत आप ही की है। आप इस कुश्ती को जारी रखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। और वो जो इस तकलीफ में से होकर गुजरे हैं, मैं गारंटी देता हूं, आपको लिख कर देने को तैयार हूं, खुदा का खादिम होने के नाते अब से जो जिंदगी आपकी शुरू हुई है, इसमें कादिर खुदा पिछली जिंदगी के मुकाबले में आपको ज्यादा ब्लेस करने वाला है। बाइबल का खुदा आपको ज्यादा ब्लेस करने वाला है। तो फिर आइए एक आयत अपने सामने रखें और एक छोटा सा गीत, उसके चंद एक बोल आप मेरे पीछे पीछे कहेंगे। मेहरबानी से अपने पांव पर खड़े हो जाएं। कुरिन्थुस के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का दूसरा खत, उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत। सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। ये मेरे लिए और आप सबके लिए है। सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। और सलाम आजकल बड़ा फेवरेट सिंगर है, मेरा भी बड़ा फेवरेट है। उसके गीत जो हैं एक के बाद एक हिट गीत है। उसके गीत के कुछ बोल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं और इसी के साथ हम दुआ के साथ रुखसत होंगे। जे जिंदगी च तू ना होवे, जे जिंदगी च तू ना होवे, जीन दा सवाद नहीं। इस तकलीफ में से गुजरने के बाद ये मेरे अंदर की आवाज है, जे जिंदगी च तू ना होवे, जीन दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीन दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीन दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जीन दा सवाद नहीं। जे वेखा यसू तेरे वल ते लगदी प्यास है, जे वेखा यसू तेरे वल ते लगदी प्यास है, हुण भावें मर जावां मैनू यसू दी ही आस है। हुण भावें मर जावां मैनू यसू दी ही आस है। कीता तूं फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं, कीता तूं फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जीन दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीन दा जवाब नहीं। आइए दुआ करें। मेरे खुदाम तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए और इस बात के लिए कि तू हमें मुख्तलिफ तरीकों से सिखाता है, सिखाता रहता है, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। और आज एक बहुत बड़ी कुव्वत को, बरकत को लेकर, जीत को लेकर, कामयाबी और कामरानी को लेकर खुदावंद हम तेरे घर से रुखसत हो रहे हैं। हमें बरकत दे और बरकत देकर रुखसत कर अपने बेटे यीशु के नाम।